الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت رکھنے والا ہو اور وہ جب دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں تو درود پاک پڑھیں، اور ہاتھ ملانے کی ایک دعا بھی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگر یہ دعا یاد ہو تو دعا بھی پڑھ لیں اور درود پاک بھی پڑھ لیں، اور اگر دعا یاد نہ ہو تو صرف درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ بھی مٹیں گے اور درود پاک کی مزید برکتیں بھی ہاتھ آئیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو افضل قرار دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ یقیناً حکیم کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حکیم کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور دوسرا ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں جو دیگر مخلوقات میں نہیں ملتی۔ آج میڈیکل سائنس، دیگر سائنس کے جو شعبے ہیں وہ جسم انسانی پر سرچ کرتے ہیں، سرچ کرنے کے بعد اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ان تحقیقات کو پڑھ کر پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم میں کیا کیا چیز
پیدا فرمائی ہے۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ایک انسانی دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو امریکہ کا شہر نیو یارک جتنا بڑا ہے اتنا بڑا کمپیوٹر بنے گا۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر آج کتنا کام کرتا ہے، ایک سے ایک کے کام کرتا ہے اور ہوتا اتنا چھوٹا سے ہے، لیکن انسانی دماغ اس سے بھی چھوٹا ہے، اتنا سے، لیکن وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی رسائی جہاں تک نہیں ہے، انسانی دماغ وہاں تک بھی پہنچتا ہے، اور یہ کمپیوٹر بنا ہی انسانی دماغ کے ذریعے ہے کہ اگر انسانی دماغ نہ ہوتا تو کمپیوٹر کیسے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جب بندہ ان پر غور کرتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جسم میں ایسی چیزیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم اصغر فرمایا ہے۔ عالم مانے دنیا، اصغر مانے چھوٹی۔ یہ جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، اتر سے لے کر دکن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، یہ دنیا ہے اور یہ بڑی دنیا ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ دنیا کی لمبائی کے بارے میں لوگوں نے لکھا، تحقیق کی اور کہا کہ ایک جگہ سے چلنا شروع کریں اور چلتے 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 پوری دنیا کا جب چکر لگا کے اس جگہ پر دوسری مرتبہ آئیں گے تو کلومیٹر کے اعتبار سے 40,000 کلومیٹر بنے گا۔ حالانکہ کوئی ابھی گیا نہیں کیونکہ بیچ میں سمندر پڑتا ہے، لیکن قاعدوں کے ذریعے، فارمولوں کے ذریعے زمین کی پیمائش کی گئی کہ زمین یہ کتنی لمبی ہے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو بتایا گیا کہ 40,000 کچھ کلومیٹر کی دوری پر یہ پوری زمین محیط ہے، یعنی گھری ہوئی ہے۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج کی سائنس، جس کے پاس راکٹ بھی ہے، جس کے پاس ایروپلین بھی ہے، جس کے پاس مشینیں ہیں جن سے یہ لوگ پتہ لگاتے ہیں، لیکن اس سے 100 سال پیچھے جائیے، کوئی راکٹ نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی مشینیں نہیں، کوئی دوربین نہیں۔ اس کے باوجود ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، یہاں تک کہ 1400 سال پہلے کہا تھا کہ زمین اتنی لمبی ہے۔ انہوں نے میل کے اعتبار سے بتایا تھا۔ اب جب میل کے اعتبار سے ہم کلومیٹر نکالتے ہیں اور آج کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار ہمارے بزرگان دین بغیر مشین کے، بغیر کسی چیز کے مدد لیے انہوں نے جو زمین کی مقدار، پیمائش، لمبائی بتائی تھی بعین ہی وہی آج سائنس والے بھی بتا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو لے لیجئے، اعلیٰ حضرت یہ 100 سال پرانے بزرگ ہیں، 100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان کا وصال، ان کی وفات 1921 عیسوی میں ہوئی ہے اور آج 2023 چل رہا ہے، یعنی 103 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں زمین سے سورج کتنی دور ہے، زمین سے چاند کتنی دور ہے، زمین سے دیگر ستارے کتنے دور ہیں، گرہ کتنی دور ہیں، ساری پیمائش آپ نے لکھی کہ اتنے میل دور زمین سے یہ ہے، اتنے میل دور زمین سے یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ سورج ہمارے زمین سے کتنے گنا بڑا ہے، چاند کتنا گنا ہے، دیگر سیارے، دیگر گرہ کتنے بڑے ہیں۔ آپ نے جو لکھا، آج کی سائنس جو تحقیق کر کے
मशीनों का इस्तेमाल करके जो किलोमीटर हमें बताती है, आला हजरत के बताए हुए मिकदार के एकदम करीब करीब है। सिर्फ 100, 200, 500 किलोमीटर का फासला बनता है, जो फर्क आता है, बाकी भी आइन ही वही निकलता है। हालांकि उस जमाने में कोई जरिया नहीं था चांद पे जाने का, कोई रॉकेट वाला नहीं था, कोई ऐसा हथियार या आलात नहीं थे जिसके जरिए से दूरी नापे, लेकिन अल्लाह ताला ने बुजुर्गान दीन को हमारे ऐसा इल्म अता किया था। इसी को तो बोलते हैं इल्म लदुन्नी। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो कौल सुनिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस वली को इल्म हयअत की मारिफत ना हो, वो अल्लाह की विलायत में नामर्द है। इल्म हयअत बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी को। ये जो एक इल्म है कि सूरज, चांद, सितारे, दीगर सैयारे कैसे चलते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, सर्दी और गर्मी कैसे आती है, ये सैयारे कहाँ हैं, कैसे हैं, मौसम कैसे बदलता है, इस सारे इल्म को इल्म हयअत कहते हैं। और इमाम गजाली ने फरमाया कि वो वली अल्लाह की विलायत में नामर्द है जिसको ये इल्म नहीं आता। तो इमाम गजाली के कौल से पता चला कि हमारा हर वली साइंसदान होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आसमान को कैसे बनाया, आसमान में क्या असरार और रुमूज है। जब वली उन बातों को जानता है तब अल्लाह की मारिफत में यकीन पैदा हो जाता है। अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अगर मुझसे या आपसे कोई पूछ ले कि अल्लाह को कैसे मानते हो, साबित करो, भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बस अल्लाह को हम मानते हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हम अल्लाह को मानते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के बारे में कोई हमसे आपसे सवाल करे तो हम जवाब नहीं दे पाते। लेकिन हमारे औलिया किराम से जिसने सवाल किया उसका जवाब आपने दिया, चाहे वो जिस तबके के लिहाज से हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बनाई हुई चीज़ों में गौर करो। जब गौर करोगे तो मेरे वजूद का तुम्हें यकीन होगा। फिर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगा तो तुम मेरी ज़ात का इनकार नहीं कर सकते। तो जब औलिया किराम इस दुनिया से ऊपर जाके आसमानों की सैर करते हैं तब उनको पता लगता है कि यार अल्लाह है क्या चीज़। और ये कोई इस तरह की बातें नहीं है, हालांकि हम देखते हैं और ना हमने देखा ना हमारे आबाओ अजदाद ने देखा किसी आदमी को उड़ते हुए। हाँ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह में तो उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन इन चीज़ों के अलावा सिर्फ अपने बदन से उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा होगा। तो फिर भाई आसमान में जाके वलियों ने कैसे देख लिया? तो प्यारे और मोहतरम स्नेह भाइयों, हमारे और आपके न देखने से ये बात साबित नहीं आती कि कोई उड़े ही ना। अल्लाह जिसको तौफीक दे, ताकत दे और कुव्वत दे, वो उड़ भी सकता है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मज़ार लाहौर में है, दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले के वली हैं ये। इनका मज़ार लाहौर में बना है। जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने से बगदाद, बगदाद से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान होते हुए अजमेर तशरीफ लाएं तो आपका गुजर लाहौर से हुआ और आपने लाहौर में दाता साहब के मज़ार पर रुक कर चिल्ला किया, वजीफ़ा खींचा। और आज भी दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो चिल्ला बनाया हुआ है जहाँ पर बैठकर आपने वजीफ़ा पढ़ा था।
जब आप लाहौर से अजमेर के लिए रवाना हुए तो आपने एक शेर कहा, वो शेर आज भी दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर लिखा हुआ है। और आपने लिखा कि ये दाता साहब आम आदमी नहीं है, ये सिर्फ पीर नहीं है बल्कि पीरों के भी पीर हैं, पीरों के भी पीर हैं। यानी इतना बड़ा मर्तबा ख्वाजा पाक ने उनका बयान किया। ये दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अपने पीर साहब की सोहबत में था तो मेरे पीर साहब ने कहा कि चलो आज मैं औलियाए किराम से तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, मैं बरकत हासिल करूँगा, उनसे मुसाफा करूँगा, मुलाकात करूँगा। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीर साहब मुझे लेकर जंगल में गए। जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं कि कुर्सियां बिछी हुई हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं। मैंने अपने पीर साहब से कहा कि ये क्या माजरा है, ये कुर्सियां क्यों रखी हुई हैं, ये कौन बैठे हुए हैं, और ये जो बाज लोग उड़ रहे हैं ये कौन है। कहते हैं मेरे पीर साहब ने कहा कि बेटा ये विलायत के फूला दर्जे पर फाइज हैं, ये विलायत के फूला दर्जे पर फाइज हैं, ये अब्दाल हैं, ये कुतुब हैं, ये फूला वली हैं, अल्लाह ने ये मकाम दिया है, इनको उड़ने की ताकत दी है, ये सारा कुछ बताया। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं फिर मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा कि जो लंगड़ाते हुए आ रहे थे और लाठी का सहारा लेकर आगे चल रहे थे। जब उनको लोगों ने देखा तो सब दौड़ के उनके पास गए और उनका दामन थाम लिया और धीरे धीरे लाकर एक नूरानी कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने अपने पीर साहब से अर्ज किया, हुजूर इनका विलायत में कौन सा मर्तबा है। आपने फरमाया कि मेरे पीर साहब ने कहा कि बेटा इनका मर्तबा विलायत में बहुत बुलंद है। मैंने अर्ज किया कि पीर साहब जब इनका मर्तबा इतना बुलंद है कि यहाँ जितने मौजूद औलियाए किराम हैं सबसे बड़ा है, हालांकि इनसे छोटे छोटे मर्तबे वाले हवा में उड़ रहे हैं तो इनको भी उड़ते हुए आना चाहिए, लेकिन ये लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे आ रहे हैं। जब इतने बड़े वली हैं तो इनको तो एकदम बिजली की तरह उड़ते हुए आ जाना चाहिए। कहते हैं मेरे पीर साहब ने कहा बेटा हर वली की एक अलग पहचान होती है, इनके अंदर ये है कि मैं आजिज़ी करूं, मेरे अंदर जो कमाल खूबी अल्लाह ताला ने दिया है मैं उसको छुपाऊं। ये उड़ सकते हैं, अल्लाह ताला ने इनको ताकत कुव्वत उड़ने के दी है, लेकिन ये छुपाते हैं। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये हिकायत बयान करने का मकसद ये है कि देखो अल्लाह ताला औलिया किराम को उड़ने की भी ताकत देता है। इसलिए औलिया किराम जब सब लोग सो रहे होते हैं, हमारा दिन ये दिन होता है, रात में तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन औलिया किराम की रात होती है। दिन ये हमारे लिए है, रात उनके लिए है। इसीलिए कहा गया है कि रात के वक्त अल्लाह से जो इखलास के साथ मांगता है अल्लाह ताला उसको अता करता है। और तहज्जुद के वक्त तो रिवायात हैं कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है कि है कोई मांगने वाला, उसकी झोली भर दी जाए, है कोई कंगाल कि उसको मालदार कर दिया जाए। और सहरी का वक्त खत्म होने तक ये निदा आती रहती है, लेकिन हमें क्या, हम तो सोए पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो इनायतें, वो सआदतें, वो बरकतें हमें मिल ही नहीं पाती। लेकिन औलिया किराम रात भर जाग के अल्लाह ताला की उस निदा का इंतजार करते हैं, और जब ये निदा आती है तो कहते हैं हाँ हम है ना, हमारी झोली भरी जाए। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत खूबियां रखी हैं, बहुत खूबियां रखी हैं। बयान करने वालों ने बयान किया, लिखने वालों ने लिखा कि इंसान के अंदर ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है,
लेकिन प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, खूबी होने के बावजूद वो खूबी काबिले तवज्जो और लाइक उस वक्त होती है जब उसका इजहार हो। मैं बताऊं, मेरा मोबाइल बहुत अच्छा है, ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग करता है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है, इसमें फुला ऐप चल जाता है, ये होता है वो होता है, 100 खूबियां बता दूं। लेकिन ये मोबाइल खूबियों वाला कब होगा? जब आप लेके चलाएंगे और देखेंगे भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन जब आपने देखा तो वो उससे कॉल ही नहीं लग रही, उसकी स्क्रीन ही सही नहीं चल रही, तो आप कहेंगे साहब आपने 100 खूबियां बताई थी, इसमें तो एक खूबी भी नहीं है। तो लिखने वालों ने लिखा इंसान में ये खूबी, ये खूबी, ये खूबी, ये खूबी, बयान करने वालों ने बयान किया, लेकिन अब पता कैसे चले कि इंसान के अंदर कौन सी खूबी है? तो अब ये हमको जाहिर करना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा। और हमारे बुजुर्गान दीन ने लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं बताई, क्योंकि बुजुर्गान दीन देखो बहुत मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर से जुमले में पूरी दुनिया को समेट देते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के इस जिस्म में पूरी दुनिया को समेट दिया कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये बड़ी दुनिया है, इंसानी बदन, एक आदमी का बदन, ये छोटी दुनिया है। और अल्लाह करे कि आप सब कोई पढ़ें, दरस निज़ामी में एक किताब दाखिल है, तफसीर बैज़ावी, कुरान पाक की तफसीर है, अरबी में है। इसमें उन्होंने जाहिर किया है, ये बात बताई है कि अल्लाह ताला ने जो बयान किया कि इंसानी बदन ये छोटी दुनिया है, कैसे है। हालांकि दुनिया में देखो समंदर भी है, दुनिया में देखो नहरें भी हैं, नदी भी हैं, पेड़ भी हैं, पहाड़ भी हैं, मकानात भी हैं, ज़मीन भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, पीतल भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या इंसानी बदन में ये हैं? उन्होंने फिर एक एक की वजाहत करके बताया कि इंसान के अंदर समंदर भी है, इंसान के अंदर नदी भी है, इंसान के अंदर दरख्त भी है, इंसान के अंदर फल देने वाला दरख्त भी है, इंसान के अंदर फल न देने वाला दरख्त भी है, इंसान के अंदर जहरीला दरख्त भी है और मीठा फल देने वाला भी दरख्त है, इंसान के अंदर पहाड़ भी है, इंसान के अंदर मकान भी है, इंसान के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, पीतल भी है, हर किस्म की चीजें हैं। क्योंकि मेरे रब ने कहा कि इंसान का जिस्म आलम असगर है, छोटी दुनिया है, झूठा कैसे हो सकता है? फिर आपने एक एक की शरह बताई कि इंसान के अंदर समंदर कैसे है, इंसान के अंदर वो दरिया कौन सा है, इंसान के अंदर दरख्त वो कौन सा है, इंसान के अंदर पहाड़ कौन सा है। ये सारी चीजें वजाहत फरमाई। तो जब पढ़ो तब पता लगता है कि वाकई में यार अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाया है। तो बेशुमार खूबियां अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। आप देखें, एक अकेले इंसान को अकेला शेर पा जाए तो फाड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कैसी खूबी अता फरमाई कि बड़ा से बड़ा शेर हो, शेर बबर का भी बाप क्यों ना हो, इंसान के सामने आ जाए, इंसान डर रहा है और वो हमला करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी दी है कि उस बड़े से बड़े शेरे बबर को 1 मिनट में भगा सकता है, बिगैर बंदूक के, बिगैर तलवार के, बिगैर बर्छी के, बिगैर भाले के भगा सकता है। और वो खूबी क्या है? आप थोड़ा झुकिए जमीन की तरफ और ईंटा उठाने के लिए आप बढ़िए, जो ही वो शेरे बबर देखेगा कि ये ईंट उठा रहा है, हालांकि उस ईंट से शेरे बबर का कुछ नहीं उखाड़ा जाएगा, वो नहीं मरेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये खूबी और इस खूबी में इतनी ताकत, इतनी औकात, इतनी अच्छी सिफत रखी है कि वो शेरे बबर भी जब इंसान को ईंट उठाते देखता है तो तुरंत भागता है। आप देखें, बड़ा से बड़ा कटखाना कुत्ता भी हो और भौंक रहा हो, आपको देखकर आप यूं ही झुकेंगे। अभी ईंट उठाया नहीं, ईंट मारा नहीं, झुके, वो फरार हो जाता है। कितनी खूबी अल्लाह ताला ने रखी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बड़ी खूबियां रखी हैं, लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों जाहिर कैसे होगी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं, इंसान के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, लेकिन सबसे अच्छे अगर मेरी निगाह में हैं तो वो 4 काम हैं। वो 4 काम मैं आपको बताता हूँ, फिर इंशाअल्लाह जितना वक्त रहा उसकी वजाहत या तो फिर अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूँगा।
फरमाते हैं नंबर 1 है तो ये बहुत नॉर्मल, जब इनकी वजाहत सुनेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे, यार ये कितना बेहतरीन और कीमिया नुस्खा है। नंबर 1 फरमाया गुस्से में खता बख्शना। आदमी को गुस्सा ना आए, सामने वाला गलती कर दे, चलो भाई माफ किया, ये तो है अच्छा, लेकिन इससे अच्छा क्या है? बंदे का दिल दुखा दिया, बंदे को नुकसान पहुंचा दिया, सामने वाले ने गुस्सा आ रहा है कि मैं इससे बदला लूं, लेकिन इस गुस्से में भी उसको माफ कर दे, उसकी ये खूबी बहुत पसंदीदा है। और ये प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई बहुत कम लोगों को मिलती है, और इसी वजह से घर के घर उजड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा मुझे ऐसा कह दिया, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा मेरे साथ ये बर्ताव, मैंने तो उसको दावत दी थी और इसने अपने बेटे की शादी में दावत नहीं दी, अब मैं इसको बताऊंगा किस खेत की मूली हूं मैं। हाँ भाई, किस खेत की मूली हो? जमीन ही की मूली हो, कहीं आसमान की मूली तो हो नहीं। अगर उसने आपको नहीं पूछा तो क्या हुआ? एक वक्त का खाना अगर उसका हम खा लेंगे तो क्या हमारी जिंदगी पार हो जाएगी? नहीं, जिंदगी पार नहीं होगी। तो भाई नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसके पास असबाब ना हो सकता है भूल गया हो, क्योंकि ऐसे माहौल में आदमी भूल जाता है दावत देना, और खास लोगों को भी भूल जाता है। जी हाँ, ये नहीं कि मैं दूर का रिश्तेदार थोड़ी हूं, मैं तो करीबी रिश्तेदार हूं, मुझे को भूल गया। हाँ भाई, आदमी का ज़हन है, भूल जाता है। तो गुस्से के वक्त खता बख्श देना ये बहुत बड़ी खूबी है। और गुस्से का इलाज, किसी को गुस्सा बहुत आता है तो कहते हैं यार कोई इलाज बताओ, कोई दुआ दे दो, कोई तावीज़ दे दो, कोई दवा दे दो, मुझे गुस्सा आना कम हो जाए। आइए ना औलिया किराम की बारगाह में, आइए उनसे मांगते हैं इलाज। एक वली ने इतने आसान लफ्जों में और आसान तरीकों में गुस्से का इलाज बयान किया कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। साहब, मैं गुस्सा खत्म करने के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ, और ये एक जुमले से गुस्सा मेरा खत्म हो गया। जी हाँ, वो वली लिखते हैं कि जब भी गुस्सा आए किसी पर, उसको पत्थर समझ लो। क्या समझ लो? पत्थर। तुम्हें गुस्सा आएगा ही नहीं। ये क्या? पत्थर समझ लूं तो गुस्सा ना आएगा, ये कैसे होगा? आप फरमाते हैं आप जा रहे थे, एक पत्थर पड़ा हुआ था, ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, आपका पांव उस ईंट उस पत्थर से लग गया, जख्मी हो गए आप, खून बहने लगा, दर्द खूब हुआ। क्या आप उस पत्थर को मारते हैं? नहीं मारते ना। अगर इससे कम तकलीफ एक तमाचा आपको किसी ने मार दिया तो आप मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पत्थर को कभी मारने के लिए कोई तैयार होता है? नहीं ना। आप फरमाते हैं जिस पर गुस्सा आए उसको पत्थर समझ लो, गुस्सा आएगा ही नहीं कि यार ये पत्थर है तो मैं और इसको मारूंगा तो मुझे और तकलीफ होगी। ईंट को अगर ईंट ने आपको चोट दिया, आप ईंट को मारेंगे तो ईंट का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा। कोई अक्लमंद से अक्लमंद, पागल से पागल आदमी भी होगा तो उस पत्थर को नहीं मारता ना। पागल है, कोई समझ नहीं है, माँ बाप की भी तमीज उसको नहीं है, लेकिन ये तमीज उसको जरूर होगी कि पत्थर से चोट लग गई है तो पत्थर को मारने के लिए तैयार नहीं होता, तैयार नहीं होता। ये फितरत है इंसान की। तो कहते हैं कि जो भी आपको तकलीफ पहुंचाए बस आप पत्थर समझ लो कि ये पत्थर है, तो जब पत्थर है तो गुस्सा आएगा नहीं। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, गुस्से के वक्त गलती मुआफ करना ये बहुत बड़ी खूबी है। नंबर 2, मुफलिसी में सखावत करना, ये बहुत उम्दा सिफत है। बंदा खुद कंगाल है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आ गया, साहब मुझे दो, तो उसको दे दे अल्लाह की रिजा के लिए। वरना लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है और आपने चंदा दे दिया तो ये कमाल की बात नहीं है, आपके पास है, लेकिन मुफलिस, हाजत मुझे है लेकिन अपनी हाजत को कुर्बान करके मैं दूसरे को दे दूं, ये बड़ी खूबी है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताऊं, आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। हातिम ताई ये मुसलमान नहीं था, ये इस्लाम से पहले का है। हाँ,
हातिम ताई का बेटा सहाबी रसूल और हातिम ताई की बेटी सहाबिया है, हमारे नबी पर ईमान ले आए थे ये। लेकिन हातिम ताई इंतकाल कर चुका था, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। लेकिन हातिम ताई का नाम आप इंडिया में किसी से भी पूछ लें, हर कोई जानता है। बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कहीं भी आप जाएं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, हर मुल्क वाले हातिम ताई का नाम जानते हैं। किस वजह से जाने? हालांकि किताबों में लिखा है, किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान, कि हातिम ताई के जमाने में 3 लोग बहुत मशहूर थे। नंबर 1 अबू हबाहब, ये बुखल में बहुत मशहूर था, बुखल में बहुत मशहूर था। इतना बखील था कि अगर कोई किसी के बारे में सुन लेता कि मेरे घर मेहमान आने वाला है तो जंगल में निकल जाता था कि न मैं मिलूंगा न इसको खिलाना पड़ेगा, मेरा खाना बच जाएगा। इतना बड़ा बखील था। और दूसरा शख्स जिसका नाम अशअब बिन जुबैर था, ये लालच में बहुत मशहूर था, और ऐसी लालच की आपने भी नहीं की होगी। अगर किसी के मकान से धुआं उठता देखता था तो ये लालची आदमी ये सोचता था कि ये लोग मुझे खाना भेजेंगे। अगर किसी को अच्छा कपड़ा पहनते हुए अपनी जानी बातें देखता था तो ये लालच में इतना बड़ा हुआ था कि सोचता था कि ये अच्छा लिबास मुझे दे देगा। यानी इतना लालची आदमी, अपना तो किसी को देना नहीं है, दूसरे ही का लेना। ये 2 शख्स। तीसरे हातिम ताई, लेकिन हातिम ताई जो मशहूर था वो सखावत में था। आज पूरी दुनिया में आप देख लें, अबू हबाहब का नाम कोई नहीं जानता, और आपने भी पहली मर्तबा सुना होगा। अशअब बिन जुबैर का नाम कोई नहीं जानता, आपने पहली मर्तबा सुना होगा। लेकिन हातिम ताई का आपने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो सखावत में मशहूर था, और सखावत ये अच्छी खूबी है, अच्छी सिफत है। पता चला कि अच्छाई देर तक जिंदा रहती है, बुराई अगर जिंदा भी रहती है तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद खत्म हो जाती है। और खुद नहीं खत्म होती, जिसके अंदर वो बुराई होती है उसको भी खत्म कर देती है। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, मुफलिस के वक्त खुद फाके के मामला है, लेकिन फिर भी सखावत करे तो ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है, ज़रा से हम अपने करीब के मुसलमानों को देखें। बहुत ज़्यादा गुर्बत फैलती जा रही है। जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर गुर्बत बहुत उरूज पर है। मेरे पास भी आते हैं, हालांकि मुझे मालूम नहीं था और मैं गुमान भी नहीं करता था कि नगले में ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए, जिनके घर में लाले पड़े हुए हैं। और आप भी थोड़ा गौर करें, आप देखेंगे यार नगले में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, जब अंदर जाओ, पता करो, तब लगता है कि यार बहुत लोग हैं। 2-3 को तो मैं अभी जानता हूँ कि बड़े मुसीबत में हैं बेचारे, लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं। तो अब इसका मकसद भी नहीं है कि साहब हमें मालूम नहीं है तो हम क्या मदद करें। तो भाई अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है ना, ज़बान दिया है ना, आँख दिया है ना, कान दिया है ना, थोड़ा से ढूंढें। जिस तरह हम कारोबार के लिए जाते हैं, ढूंढते हैं कारोबार, तो ऐसे गरीब लोगों को भी ढूंढें। इंशाअल्लाह इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और इसकी बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अमल करने की तौफीक